تو ہو سکتا ہے کہ آپ سالوں سال سے نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ قبول نہ ہو رہی ہو۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ صفائی آدھا ایمان کا مطلب آپ کا ایمان آدھا ایک طرف، باقی اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کی خدمت، پڑوسیوں کے حقوق، سماج کے حقوق جو بھی ہیں وہ ایک طرف اور صفائی ایک طرف، یعنی آدھا ایمان آپ کی صفائی ہے۔ اس صفائی کے بارے میں سماجی اعتبار سے بھی ہم بہت کمزور ہیں۔ ہم یہاں بچوں کو اس بات کی تاکید کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں سے گھر پہ پوچھیے گا، ہر سنیچر کے دن خاص طور سے اور جمعرات کے دن اس کی تاکید کی جاتی ہے کہ جمعے کے دن کو آپ خاص طور سے صفائی کے لیے رکھیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک دن وہ قبر سے گزر رہے تھے، قبرستان سے گزر رہے تھے، تو فرمایا کہ کس کی قبر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں صاحب کی قبر ہے۔ کہا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا کیوں؟ تو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ استنجا کی ناپاکی سے بچتے نہیں تھے۔ آج ہم لوگ گھر میں جو ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں تو جو پتھر بہت چکنا پتھر ہوتا ہے، اگر اس میں احتیاط نہ کریں تو ناپاکی لازمی بن جاتی ہے۔ گھر میں جو ٹوائلٹ ہیں، جو بچوں کی مائیں ہیں، جو ان کی خالائیں ہیں، جو پھوپھیاں ہیں، بہنیں ہیں جو رہتی ہیں، یہ ابھی سے یہ عادت ڈالیں، خود بھی اور بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ ٹوائلٹ جب بھی استعمال کریں تو اس کے بعد پانی تو ضرور ڈال دیں کہ پیشاب کے چھینٹے وہاں پر نہ رہیں۔ اگر کوئی دوسرا ٹوائلٹ استعمال کر کے آیا، آپ جب استعمال کرنے جا رہے ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ ایک لوٹا پانی چاروں طرف بہا دیں، اس لیے کہ آپ جاتے ہیں اور نل جیسے چلاتے ہیں اور نل کا پانی اس کے بعد ادھر ادھر جاتا ہے تو اس کے چھینٹے جو ہوتے ہیں، اگر پیشاب کا ایک قطرہ بھی ادھر ادھر ہو اور نل کا پانی وہاں پر پہنچے اور وہ اس سے مل کر چھینٹے اڑائے تو ظاہر کا اپنا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ عذاب قبر اسی لیے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ استنجا سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو استنجا سے بچنے کا اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا ہے، وہ تو اس کو خبر نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں وضو بنا کے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن کہاں اس کا پانی مر رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وہ دعا مانگ رہا ہے تو اس کی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے وضو بنایا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کیا، لیکن اس کو پتا نہیں کہ وہ ناپاک کہاں ہو گیا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچوں کو تلقین کیجیے، ہفتے میں صرف جمعے کے دن یا بیفے کے دن ضروری نہیں کہ آپ سپٹی صاف کریں، سپٹی گھر میں روزانہ صاف کرنے کی چیز ہے۔ اس کے لیے ہمارے یہاں ماحول ہوتا ہے مہینہ میں ایک مرتبہ صاف کر لی، غلط بات ہے۔ سب سے بڑی بات عورتیں ہیں، ان کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ٹوائلٹ گندا رہے گا، وہاں سے بدبو آئے گی تو یہ جو بھوت پریت اور خبیث جناتوں کی جو شکایتیں گھروں میں آتی ہیں وہ اسی وجہ سے آتی ہیں، وہ گندے رہتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو سونے کے بعد جو شیطان اس کے ناک میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ گندی جگہ ڈھونڈتا ہے، گندی جگہ اس کو ملتی ہے وہاں پر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے صبح اٹھو تو اپنے ناک کو صاف کرو۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے اس کی تاکید کی، چھڑک کر خوب مضبوطی سے اور زور سے ناک کو صاف کرنا چاہیے۔ ویسے ہی ٹوائلٹ روزانہ صبح میں بھی صاف کریں اور شام میں بھی صاف کریں، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اگر اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ سالوں سال سے نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ قبول نہ ہو رہی ہو۔ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، بچوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ اسکول میں کتنے بچے آتے ہیں، پاؤں میں میل ہے، مہینہ ہو جاتا ہے، اس کو صاف نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ کو دیکھتے ہوں گے، آپ کے پاس فوٹو جاتے ہوں گے، ناخن کاٹنے کی تلقین ہر جمعرات کو کی جاتی ہے۔ ہر تسبیح کو ہم بچوں کے ساتھ سختی بھی کر دیتے ہیں مجبوراً، وہ سختی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو بتائیں۔ ہر دن یہ کہا جاتا ہے کہ ناخن کاٹ کر آئیے، ہم جو سنیچر کو چیک کریں گے۔ اس کے بعد بھی ہر سنیچر کو 10-15 بچے ایسے ضرور نکل جاتے ہیں جن کا ناخن نہیں کٹا ہوا ہوتا ہے۔ آخر اس کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں جاتی ہے؟ پڑھائی اگر 70% ہو جائے تو چلے گا، لیکن اگر صفائی اور ڈسپلن اور تربیت اس میں اگر کمی ہو جائے تو پھر یہ نہیں چل پاتا ہے۔ آپ کتنا بھی پیسہ خرچ کر دیجئے، کتنا بھی اس کے پیچھے آپ اپنی کمائی یا پونجی لگا دیجئے، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جب تک آپ اس پر توجہ نہیں دیں گے۔ اس پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اس سے بچوں کی تربیت میں اور نکھار پیدا ہوگی۔ اس کی طرف خاص توجہ دینے کی میں گزارش کروں گا۔ بچوں کے لیے ڈریس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یونیفارم ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہم بچوں کو بیتیا موتیاری میں پڑھائیں گے تبھی بچے زیادہ پڑھیں گے؟
क्या आप कपड़िया में या देहातों में और दूसरी जगह अच्छा नहीं बन सकते हैं? बेतिया में बच्चा पढ़ेगा तो उसके लिए ड्रेस माया धुल धुल कर साफ कर करके भेजती हैं, लेकिन कपड़िया में पढ़े तो वही ड्रेस जो एक हफ्ते से पहन रहा है उसी को पहना कर भेज देते हैं। कम से कम 2 से 3 ड्रेस रखना चाहिए। हमने 2 साल 3 साल तक इसकी रियायत की। ये समाज है, बहुत सारे गरीब लोग भी रहते हैं, कैसे ये बोझ बर्दाश्त करेंगे? एक ही ड्रेस की इजाजत दी गई कि ले लीजिए, उसको रोजाना धुलकर साफ करके ही भेजा कीजिए। लेकिन इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेशन जब शुरू होगा अप्रैल से, उस वक्त पूरी लाजमी पाबंदी होगी कि आप 2-3 ड्रेस रखें। जुमेरात के दिन की अलग ड्रेसें होंगी और हफ्ते में 1-2 दिन की अलग ड्रेसें रहेंगी, स्पोर्ट्स की ड्रेसें अलग रहेंगी, जूते, व्हाइट जूते और ब्लैक जूते, ये सारी चीजें बनाए। हम सब मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह इस गांव को भी बेतिया बना सकते हैं, इस गांव को भी मोतिहारी बना सकते हैं। लेकिन इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती है, इधर भी तवज्जो देने की जरूरत है। हम लोग इस सिलसिले में और भी कोशिशें करते हैं। बच्चों के दरमियान क्विज का मुकाबला कराते हैं। अभी एक मुकाबला हुआ था, आप लोगों को मालूम होगा, बच्चों को याद करवाया गया था तुम्हारे नबी का नाम क्या है, नबी के अम्मी का नाम क्या है, नबी के अब्बू का नाम क्या है। बच्चों ने याद किया, इसका फायदा होगा। एक और बहुत अहम बात है, मैं आखिरी चंद बातें आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। सलाम की दावत, सलाम की आदत, सलाम की दावत दीजिए लोगों को कि सलाम करें, और सलाम की आदत बच्चों को डलवाइए। देखिए जो बड़े लोग हैं, सलाम ये एहतराम के लिए होता है, सलाम ये इज्जत अफजाई की चीजें होती है। अगर हम अपने बड़ों को सलाम करते हैं तो बड़ा ये समझता है कि इस छोटे के अंदर रिस्पेक्ट का जज्बा है, इज्जत का जज्बा है, तो अपने बड़ों को सलाम कर रहा है। समाज आज जिस खतरनाक मरहले पर आपका जा रहा है, हम सब इसको देख रहे हैं। समाज के इस फाउंडेशन को बचाने की जिम्मेदारी भी हम सब की है कि समाज अगर खतरनाक रुख पर जा रहा है तो इन बच्चों के जरिए से बचाएं। अगर बच्चे 20-30 साल के बाद जब जवान होकर आएंगे, उनको भी वही खुराफात वाला समाज मिलेगा। तो जैसे एक फल दूसरे फल को देखकर रंग पकड़ लेता है, अगर शैतानी की बात होगी तो हमारे बच्चे हों या आपके बच्चे हों, अगर बुरी बातें होंगी तो असर पड़ना लाजमी है। इसलिए अपने बच्चों को अभी से बचाइए, उनको गलत माहौल से बचाइए, और इसमें सबसे बड़ी चीज जो होगी, सलाम की आदत डलवाइए। लोग ये शिकायत करते हैं कि बच्चे सलाम नहीं करते हैं, कि आप पिटाई नहीं करते हैं। ये पिटाई सिखाने वाली चीज नहीं होती है, ये सारी चीजें आदत डलवाने की होती है। मैं एक तजुर्बा आपको बता रहा हूं। अगर एक छोटा बच्चा है, हम उसको यहाँ पर हर दिन पीटी में कहते हैं कि बच्चों सलाम की आदत डालो, सलाम हर उस आदमी से करो जिसको तुम पहचानते हो और जिसको नहीं पहचानते हो, हर एक को सलाम करना चाहिए। तकरीबन स्कूल के हर बच्चे को यह बात याद है कि सलाम हर एक को करना चाहिए। आप अपने घर पे पूछिएगा बच्चों से, क्या ये बात बताई गई है? सलाम हर एक से करें, चाहे उसको पहचानते हो या ना पहचानते हो। एक बच्चा है, अपने बाप के पास गया, बाप को देखा तो अस्सलाम वालेकुम कह दिया, लेकिन बाप को दोस्त उसके साथ है, उनको वो सलाम नहीं करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सलाम हर एक को करना चाहिए, चाहे उसको पहचानते हो या नहीं पहचानते हो। ये जज्बा आप बच्चों में डालिए, और इस आदत को पकड़ाने का बेहतरीन तरीका यह है कि अगर आपका बच्चा सलाम नहीं करता या बच्ची सलाम नहीं करती है, आप खुद सलाम कर दीजिए। एक हफ्ता आप खुद इसकी पाबंदी कीजिए कि आपका बच्चा, आपके पोते पोतियां, नवासे नवासियां आपके सामने आती हैं और आते हैं, सलाम नहीं करते हैं, आप खुद बढ़कर सलाम कर दीजिए। दूसरे दिन इंसानी फितरत है कि वो शर्मा जाएगा, वो बच्चा खुद बढ़कर सलाम करेगा। आप खुद आदत डलवा दीजिए। ये पिटाई करने की चीज नहीं है, ये डांटने की चीज नहीं, ये समझाने की चीजें हैं। समझाना शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह उसका असर हो जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स फोन करते हैं कि बड़ा बच्चा मोबाइल देखने की आदत नहीं छोड़ रहा है, मोबाइल देखने की उसको आदत पड़ गई है। इसमें हम सब कमजोर हैं। मोबाइल देखने की आदत को खत्म कराने का एक तरीका ये हो सकता है कि माँ बाप बच्चों के सामने मोबाइल इस्तेमाल न करें। ये एक बहुत खतरनाक रुख होता जा रहा है। हम खुद मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, 5-5, 6-6 घंटे इस्तेमाल करें, जब टाइम मिला तब मोबाइल उठा लिया। लेकिन बच्चों से ये उम्मीद रखें कि बच्चे मोबाइल न देखें, ये कैसे होगा? आपको जब जरूरत हो तभी इस्तेमाल कीजिए, बच्चों के सामने मोबाइल मत इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा हम लोग साल में 3 एग्जाम बड़े बड़े रखते हैं, हर 4 महीने तक, अप्रैल से लेकर जुलाई, जुलाई से नवंबर, नवंबर से मार्च में एग्जामों का 3 बड़े एग्जाम होते हैं। उसके अलावा हर महीना में टेस्ट लेते हैं। तो इन तीनों एग्जामों में जो बच्चे इम्तियाजी नंबरात से कामयाब होते हैं, हम उनको अलग से इनाम भी देते हैं। उन्हीं बच्चों की लिस्ट है, 30 बच्चे हैं जो अपने क्लासेस में, और एक बच्चा जो स्कूल टॉपर किया है। इंशाल्लाह उन लोगों को आपके सामने इनाम दिया जाएगा। एक और बात है, बहुत अहम बात है, जिसका तज़किरा मैंने किया, गांव और समाज के हालात हम सब देख रहे हैं।
ऐसी सूरत हाल में अब हम सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है? हर बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ की जिम्मेदारी है, हर बड़े की जिम्मेदारी है कि बच्चों के बारे में आप टाइट होइए, बच्चों के बारे में आप सख्त एक्शन लेना शुरू कीजिए। हदीस में ही नहीं बल्कि अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया है, ऐ लोगों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जरा बताइए, आप खाली जन्नत में चले जाएं और आपका बच्चा आपके सामने अल्लाह ताला जहन्नम में जाने का फैसला कर दे, ये कैसे बर्दाश्त होगा? और अल्लाह ताला का ये फैसला है कि जो बुरा करके आएगा वो जहन्नम में जाएगा, जो अच्छा करके आएगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह के यहाँ रिश्तेदारी नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत नूह 900 साल तक उन्होंने लोगों के बीच में दीन की तबलीग की, लेकिन उनके बेटे ने उस दीन को कबूल नहीं किया और कहा कि आप जाइए, अल्लाह ताला हमें अज़ाब में नहीं पकड़ेगा तो हम देख लेंगे। बस तूफान आया और जमीन से भी पानी निकलना शुरू हुआ, आसमान ने भी पानी ऊपर से बरसाना शुरू किया और इतना पानी आया कि सब के सब नाफरमान डूबने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम चूंकि बाप थे, बाप के सामने बेटा डूबने लगा, पहाड़ पर चला गया था कि मैं उस जूजी पहाड़ पर चला जाऊंगा तो मैं नहीं डूब पाऊंगा। लेकिन पानी जब वहां पर भी पहुंचा और जब इतना पानी हो गया बेटा डूबने लगा, तो चूंकि बाप के शफकत के जज्बात अंगड़ाई लेने लगे और उन्होंने कह दिया, ए अल्लाह मेरा ही तो बेटा है, माफ कर दीजिए। जब ये बात हुई तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर नाराजगी का इजहार किया और कुरान ने कहा, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ऐसी बात मत कीजिए, यह आपके घर का आदमी नहीं है। यानी अल्लाह ताला के यहाँ खून की बुनियाद पर फैसले नहीं होते हैं, अल्लाह ताला के अमल की बुनियाद पर फैसले होते हैं। अगर आपके बच्चे बिगड़ेंगे, आपके बच्चे अगर सही रास्ते पर नहीं होंगे तो जिम्मेदारी आपकी भी होगी, उस वक्त दुआएं नहीं सुनी जाएगी। अभी बच्चे जिस मरहले में आप कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे समाज की बहुत सारी कमियां जो हमारे सामने आ रही है, उसमें सबसे बड़ी कमी ये हो रही है कि माँ बाप कंट्रोल का जज्बा और वो पैशन खोता चला जा रहा है। एक बाप को यह हक अल्लाह ताला ने दिया है कि अपने बेटे को पूरा कंट्रोल करे, अपनी औलाद पर कंट्रोल करे और उनको सीधी राह पर लाने की कोशिश करे, और वो करे तो कामयाब हो सकता है। हम लोग ज्यादा लाड प्यार करने लगते हैं, ज्यादा उनके लिए हम लोग अपनी मुरूवत का दरवाजा खोल देते हैं, उससे बच्चे बिगड़ते चले जाते हैं। घर में माँ को सख्त होना चाहिए। एक गलत कंसेप्ट हमारे यहाँ कि माँ नरम रहती है, बाप सख्त रहते हैं। बाप तो दिन भर घर पे नहीं रहता है, बाप तो कमाने चला जाता है। माँ लाड प्यार करने लगे, बाप घर पे रहे नहीं तो बच्चे कहाँ रहेंगे फिर? माँ को घर में सख्त होना चाहिए, माँ को हमेशा टाइट रहना चाहिए। बाप घर पे कम रहता है, वो आए तो शाम के टाइम में, छुट्टी के दिनों में बच्चों से लाड प्यार कर ले, जरूरत पर उनकी तरबियत कर दे, लेकिन माँ को हमेशा टाइट रहने की जरूरत है। चूंकि 24 घंटा बच्चे उनकी निगरानी में घर पे रहते हैं, ब्रश करते हैं या नहीं करते हैं, सफाई का एहतमाम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब माओ की जरूरत होती है, इसलिए उस पर तवज्जो देने की जरूरत है।